کر دوں، لیکن ایک وہ بھی دور تھا جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ مارتے تھے. ایک وہ دور ہماری جب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو میرے آقا کے آنے سے پہلے کا وہ دور جو جس وقت لوگ بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے تھے. اگر بتائیے بیٹیوں کو زندہ اپنا ہی باپ دفن کر دیتا تھا، اور اس وقت لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر کے ہر باپ فخر محسوس کرتا تھا، وہ معاشرے میں سر اٹھا کر کے چلتا تھا. اس وقت لوگ زندہ بیٹی کو دفن کر کے سر اٹھا کر کے چلتے تھے. سر اٹھا کر اس لیے چلتے تھے کہ لوگوں میں نے آج اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے. کوئی اس زمانے میں سر اٹھا کر کے چلتا تھا کہ لوگوں میں نے آج 5 بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے، میں نے آج تک 10 بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے. کوئی کہتا تھا میں نے 20 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے. اور اس وقت بیٹی کو قتل کر کے لوگ معاشرے میں سر اٹھا کر کے چلتے تھے، اعلان کرتے چلتے تھے تاکہ لوگ اسے بہادر کہے، اسے اچھا کہے. بیٹیوں کو اس وقت بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی عزت نہیں ہو رہی تھی. اپنا ہی باپ گلا دبا کر کے مار ڈالتا تھا، یا بیابان میں لے جا کر کے گڈھا کھود کر کے زندہ اس میں دفنا دیتا تھا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مدینے کا مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے. لیکن جب سے آقا اس کائنات میں تشریف لائے نا تو دیکھا اس گھٹن گھڑی میں آقا پیدا ہوئے ہیں. جس دور میں ایک بیٹا باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس دور میں مدینے کا مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. جس دور میں ایک بیٹا ماں کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، ہاں اس دور میں آقا تشریف لا رہے ہیں. جس دور میں ایک باپ بیٹی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اس دور میں میرے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں. جس دور میں ایک بیٹا اپنے ماں کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، اس دور میں مدینے کا مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. جس دور میں کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس بیوی کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، یا کئی دنوں تک کھانا پانی بند کر کے، یا پھر محلے میں اس کے سر کے بال کو چھلوا کر کے گھمایا جاتا تھا. اس دور میں مدینے والے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں. جس دور میں بھینکر اور خطرناک ماحول تھا، لوگ شراب کو عام سمجھتے تھے، جوا کھیلنا بہادری جانتے تھے. شراب کے نشے میں کبھی بیٹیوں کی ناقدری کی جاتی تھی، شراب کے نشے میں کبھی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا. ہاں صاحب اس دور میں ایک بیٹا باپ کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچ دیا کرتا تھا. جب بوڑھا باپ ہو جاتا تھا کوئی بیٹا اس باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ہاں اس خطرناک اور بھینکر ماحول میں جہاں لوگ پیار جیسی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس دور میں آقا تشریف لا رہے ہیں. جہاں محبت کو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، اس دور میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. جہاں لوگ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سمجھ رہے تھے، اس دور میں وہاں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. جس دور میں باپ بیٹے کا پیار اب تک دنیا نہیں سمجھ پا رہی تھی، اس دور میں مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. جس دور میں باپ بیٹی کے رشتے کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس دور میں آقا تشریف لا رہے ہیں. جس دور میں بیٹی کے مقام کو نہیں سمجھا جاتا تھا، تب آقا تشریف لائے ہیں مکے کی زمین پر. کیا دیکھ رہے ہیں یار؟ کہیں باپ کو ستایا جا رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کہیں ماؤں کو رلایا جا رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں. کہیں بیواؤں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں. کہیں زندہ بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں. کہیں زندہ بیٹیوں کو دفنایا جا رہا ہے. ان تمام اور بھینکر خطرناک ماحول کو جب مدینے والے مصطفیٰ نے دیکھا، بڑی مشکل دور تھی صاحب اس وقت جب آقا تشریف لا رہے ہیں. سوچ لیجئے کتنا مشکل ہوا کتنا مشکل ہوگا. میرے مصطفیٰ کو باپ کی قدر بتا رہے ہیں، اس گھٹن گھڑی میں ماں کی عزت کو بچا رہے ہیں، اس گھٹن گھڑی میں میرے آقا بیٹیوں کے مقام کو بتا رہے ہیں. اور اس وقت مکے کی زمین پر لوگوں کو ہدایت دیا تھا، اور مصطفیٰ علل اعلان کہا تھا، اے لوگوں تم جس بیٹی کو قتل کر رہے ہو، تم جن بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہو، تم جن بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنا دے رہے ہو، جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ تم لوگ نہیں جان رہے ہو اس کا مقام کیا ہے. یار تم لوگ جاننا چاہتے ہو اس بیٹی کا مقام کیا ہے؟ تو سنو، عبداللہ کا بیٹا بتا رہا ہے، آمنہ کا لال بتا رہا ہے. وہ مصطفیٰ مکے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے لوگوں آج سے بیٹیاں مارنا بند کر دو، آج سے بیٹیوں کی قتل بند کر دو. اگر عزتیں چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، مرنے کے بعد آپ سے خدا بھی راضی ہو جائے، تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرنا، آپ اپنی بیٹی کو زندہ نہ دفنانا، آج سے اپنی بیٹیوں کو عزت دینا. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں یہ وہ بیٹی ہے کہ جب تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت لے کر کے پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہو جاتی ہے، اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے. بیٹیوں کا مقام مصطفیٰ نے کہا تھا، ارے یہ بیٹیاں رب کی رحمت ہوتی ہے. شاید اس جملے کی برکت ہے کہ آج پوری کائنات میں ہر باپ بیٹی کو عزت سے پال رہا ہے، ہر باپ بیٹی کو پیار دے رہا ہے، ہر باپ بیٹی کو
22 साल कलेजे से लगा करके पाल रहा है। हाँ, 20-22 साल के बाद अगर अपनी बेटी की शादी में 4 लाख लगा करके बेटी को रुखसत कर रहा है, 5 लाख लगा करके बेटी को शादी कर रहा है, आज 10 लाख लगा करके अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा यार, एक दौर था कि लोग मेहमान बनाने के डर से बेटी को मार देते थे, लोग इस डर से बेटी मारते थे ताकि कोई मेरा दामाद ना बन सकेगा, कोई मेरा मेहमान ना बन सकेगा। लेकिन आज अपनी बेटी की शादी में 5 लाख लगाया जा रहा है, आज एक बाप बेटी की शादी में 10 लाख लगा रहा है। क्या जरूरत थी? अरे जिस दौर में लोग बेटियों को जिंदा मार देते थे, आज तू भी बेटी को मार सकता था, आज तू भी बेटी को खत्म कर सकता था। तुझे 5 लाख तेरा बच जाता, 10 लाख बच जाता, हाँ तेरा 20 लाख बच जाता। लेकिन आज एक बाप बेटी की शादी में चाहे 10 लाख लगाना पड़ता है, एक बाप लगाता है और अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करके मुआशरे में सर उठा करके चलता है और कहता है लोगों मुबारक हो, मैं इस महंगाई के जमाने में अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर दिया हूँ। मुझे पूरी जिंदगी उतनी खुशी नहीं मिली है जितनी खुशी इज्जत के साथ बेटी को विदा करने में मिली है। हाँ, आखिर बात क्या है? इस दौर में एक बाप इज्जत से बेटी को रुखसत करके सर उठा करके चल रहा है। हाँ, वो जानता है कि मैं इस दौर का सबसे बड़ा काम कर दिया, बड़ी मुश्किल कर दिया हमने निकाह को, बड़ी मुश्किल कर दिया हमने शादियों को। मजहब इस्लाम तो सबसे खूबसूरत मजहब है, किसी पे जुल्म करना इस्लाम नहीं बता रहा है, किसी को सताना इस्लाम नहीं बता रहा है, लेकिन हमने शादियों को क्यों मुश्किल किया? कितना अच्छा इस्लाम आया, मदीने वाले मुस्तफा आए ना, तो बेटियों के जब मकाम बताया, तो इस दौर में बाप बेटी को इज्जत से रुखसत करके फख्र महसूस कर रहा है, और उस दौर में लोग बेटी को कत्ल करके फख्र महसूस करते थे। जब से आका है ना, तो सहाबाई किराम फरमाते हैं कि उस वक्त हम लोग बेटियों को मार देते थे, कत्ल कर देते थे, लेकिन जब से आमना का लाल आया ना, तो बेटियों की इज्जत बताई ना, तो हम लोग बेटी मारना तो दूर की बात है, जमीन पे कदम ये देख करके रखते हैं कि कहीं हमारे पैरों के नीचे चींटियां ना आ जाए। हाँ, सहाबा फरमाते हैं जो बेटी को मारने पे जरा सा भी अफसोस नहीं करते थे, जो बेटी के मारने के बाद उनसे जरा सा भी दया नहीं आता था, वो सहाबा फरमाते हैं कि जब से आका ने बेटियों का मकाम बताया ना, तब से जमीन पे संभल करके कदम रखते हैं कि कहीं हमारे पैरों के नीचे चींटियां ना दब जाए। हाँ, जो बेटी को मारते थे आज वो चींटियां मारने से डर रहे हैं। ये कमाल और ये इनकलाब अगर किसी ने बर्पा किया है और ऐसा मजहब किसी ने हमारे दरमियान पहुंचाया है, तो उसी जात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ, तो फिर कोशिश करें ना कि हमारी सुन्नत के मुताबिक शादी हो। शादी का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? निकाह मुस्तकिल इबादत को कहते हैं, अजीम इबादत मजहब इस्लाम में निकाह है। निकाह जो शख्स निकाह करता है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कई बुराइयों से वो तो बच जाता है। हाँ, शादी हमें कई बुराइयों से बचा लेती है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब वक्त पे निकाह कर दो अपने औलादों को, ताकि उससे बुराई होने का अंदेशा ना हो, खतरा ना हो। आज हर बाप सोचता है कि जब तक मेरा बेटा अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाएगा ना, तब तक उसकी शादी नहीं कराऊंगा। एक बाप की ख्वाहिश होती है जब तक बेटा इंजीनियर का ओहदा नहीं ले लेता है, डॉक्टर नहीं बन जाता है, तब तक मैं अपनी बेटे की शादी नहीं कराऊंगा। यही देखते देखते साहिब उसकी उम्र 30 साल हो जा रही है, आज उम्र 35 साल हो जा रही है। लेकिन साहिब ये देखते देखते आपका बेटा बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। आपकी बेटियां जो जिसको तालीम देते देते आप ये सोचते हैं थोड़ा और गुजर जाए, इसे और भी एक डिग्री हासिल करना है, इसे और भी इल्म हासिल करना है। यही देखते देखते साहिब हमारे बेटे और बेटियां बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। जबकि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब औलादे जवान होकर के बुराइयां करती है ना, या ज़िना में मुब्तला हो जाती है या बुराइयां करती है, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसको वक्त पे आप शादी ना कराओगे। अगर वो बुराई करेंगे तो उसके आधे का जिम्मेदार आप भी होंगे, उसके माँ बाप को भी दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वक्त पे अपने औलादों को निकाह करा दे। निकाह मुस्तकिल इबादत है, निकाह बहुत बुराइयों से हमें रोक लेती है। निकाह से अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ये ना सोचना कि जब मेरा बेटा पैसा कमाने लगेगा तब अपने बेटे की शादी कराऊंगा, जब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब बेटे की शादी कराऊंगा, हाँ जब मेरे बेटे को नौकरी हो जाएगी तब बेटे की शादी कराऊंगा। सुनो मेरे आका, मक्के और मदीने की गलियों का कभी जायजा ले लेना, कभी तारीख उठा करके देख लेना। मेरे आका के पास जब जब कोई जवान सहाबी आते थे ना, तो आका मुस्कुरा करके फरमाते थे मेरे दीवाने तू जवान हो गया है, शादी क्यों नहीं कर लेता है। हाँ, आका के पास जब भी कोई जवान सहाबी आता था ना, तो आका कहते थे मेरे दीवाने तू जवान हो गया, शादी क्यों नहीं कर लेता है। ऐसे ही एक शख्स आया, एक साहबी रसूल आए जो आका की खिदमत में रहते थे, जिनका नाम हजरत साद है।
नाम साद है, लेकिन वो इतने काले थे। देखे मेरे आका कितना शादी को आसान कर रहे हैं, लेकिन आज हमने कितना मुश्किल किया है। अपने सहन पे भी आज नजर डालने की जरूरत है यार। मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है, लेकिन हमने निकाह को मुश्किल करके इसे सबसे मुश्किल बना दिया है। सबसे हम ये सोचते हैं ना, इस्लाम जो जुल्म करना नहीं सिखाता है, आज हमने शादियों को मुश्किल करके गरीबों पे मुश्किल ला दिया है। आज गरीब ये सोचता है यार, जब दूसरे की शादी को देखता है, चौराहों पर जहेज को देखता है, शादियों में पिंडाल और इंतजाम 10 लाख 12 लाख जब खर्चे देखता है, गरीब ना जब रास्ते से गुजर करके जाता है, गरीब सोचता है कि काश मेरे पास भी अल्लाह दौलत दिया होता ना, तो मैं भी अपनी बेटी को इतना ही जहेज देता, मैं भी अपनी बेटी की शादी कराता। यार आज मैं सोचता हूँ यार, आज तो देखावे में देख जो लड़का लड़की देखने का जो सिस्टम है ना, जिसे छेका छेकी में आज 5 लाख और 2 लाख खर्चे हो जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, अगर कोई गरीब होगा तो भाई देखने और दिखाने में उसे 2 लाख रुपए कहां से ला सकता है। इस्लाम तो बता रहा है कि अगर आपको अल्लाह ने दौलत दिया है, अमीर उसको नहीं कहा जाता है। आज जो जितना बड़ा अमीर है ना, उतना ही गरीबों पे जुल्म कर रहा है, उसका डिमांड भी उतना ही बड़ी हो गई है। वो गरीबों के पास उतना ही बड़ी झोली फैला रहा है। जिसके पास रब ने ज्यादा माल दिया है, वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, वही ज्यादा मांग रहा है। ये तो साहिब हमने उल्टा कर दिया है, जबकि होना ये चाहिए, अल्लाह हमें दौलत दे करके आजमाता है, किसी को गरीब बना करके आजमाता है, किसी को कमजोर करके आजमाता है, किसी को ताकत दे करके आजमाता है, हाँ किसी को इज्जत दे करके आजमाता है, किसी को जलील करके आजमाता है। हम साहिब इंसानी शक्ल सूरत में पैदा हुए हैं, तो हम आजमाए जाएंगे। हाँ हमारी आजमाइश आएगी, अल्लाह हमारा इम्तिहान लेगा। सोच लीजिए, अगर आपको दौलत मिल रही है तो ये आपका कमाल नहीं है, ये रब की आजमाइश है, रब का इम्तिहान है। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, तो उस दौलत के ताकत पे किसी गरीब को सताना नहीं है, आप किसी गरीबों पे जुल्म नहीं करना है, गरीब बच्ची के बाप से डिमांड नहीं करना है। यार आपके दौलत का इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान में कामयाब कैसे होना है। आपके पास अगर दौलत हो तो किसी गरीब मोहल्ले में घूम जाना, और गरीब किसी लड़की के बाप के पास चले जाना, अरे उसके पास जाना जिसकी बेटी 30 साल से बैठी है। आज माशरे में देख लेना, एक बाप तड़प रहा है, काश मेरे पास दौलत होती तो बेटी को मैं भी इज्जत से शादी कराता, काश मेरे पास माल होता तो मैं भी बेटी को इज्जत से शादी करा देता। तो मोहल्ले में ऐसे कितने गरीब मिल जाएंगे जिसकी बेटियां 25 साल हो गई है, आज तक हाथ पीले नहीं हो सके हैं। हाँ कितनी बेटियां ऐसी बैठी है जिसकी उम्र 35 साल हो गई है, आज तक कोई रिश्ता नहीं आया है। ऐसे मोहल्ले में अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है तो आपकी आजमाइश हो रही है, आपका इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो तो ऐसे गरीब बस्तियों में घूम जाना और किसी गरीब के पास चले जाना, उससे कहना ऐ गरीब मेरे दोस्त टेंशन ना लेना, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है। मैं जानता हूँ तेरी बेटी 25 साल से बैठी है, अब तक रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हाँ तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हारे पास गुर्बत है, हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि कोई तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के आए। अरे तू टेंशन में पड़ा रहता है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है। मैं आ गया हूँ, या तो मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का शादी करा दे, या फिर ये चंद पैसा ले ले, ये कुछ पैसा ले ले, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, ये मेरे हिस्से का कुछ माल ले ले और अपनी बेटी को इज्जत से शादी करा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम कहां तक जा सकते हो, लेकिन अगर दौलत है तो गरीब की मदद कर दो। अरे इधर गरीब बाद में खुश होगा, उसकी खुशियां तुझे जन्नत तक ले जा सकती है। हाँ आप ऐसा करो ना, ये आजमाइश है ना, ये इम्तिहान है, वरना पैसे हैं तो हमने गरीबों का जीना दोबर कर दिया है। ये आजमाइश है, समझ लीजिएगा कि आपके पास अल्लाह ने माल दिया है और आपके बगल में गरीब रखता है ना, तो समझिए कि आपकी आजमाइश हो रही है, आपका परीक्षा हो रहा है, आपका इम्तिहान हो रहा है। अगर आप चैन के लुक में खा करके सो जाते हैं ना, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अरे जब आप खाओ ना, अगर आपके पड़ोसी में भूखा हो ना, अगर आप भर पेट खा करके मजे में सो रहे हैं ना, फिर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि आपका खाना हराम हो जाता है। आप आजमाइशें हो रही है गरीब मोहल्ले में। आप देखें ना, आज शादियों में अगर कोई दावत ना दे खाने के लिए तो कोई जाएगा नहीं। आज शादियों में हम जाते भी हैं, शिरकत करते हैं। आज गरीब मोहल्ले में बेटी की शादी हो ना, तो अगर दावत दे दिया जाए सारे लोग जाएंगे। जाने के बाद तो खाने के लिए लोग जाएंगे ना, और जाकर के अगर लुकमों में थोड़ी सी कमी रह जाएगी, खाने में नमक की कमी रह जाएगी, थोड़ी सी मिर्चा की कमी रह जाएगी,
हाँ थोड़ी टेस्ट की कमी रह जाएगी ना तो फिर उस पे भी लोग शिकायतें करते हैं, लोग ताना देते हैं, यार फला अपनी बेटी की शादी में क्या खिलाया है, वो क्या खिलाया है। वो तो साहिब ये कहते हैं कि मैंने खाने गया था ना उसके बिरयानी में टेस्ट नहीं आई थी, मैं खाने गया था उसके सब्जियों में नमक कम थी, मैं खाने गया यार उसके पास तो इंतजाम अच्छा नहीं था। मैं पूछना चाहूंगा यार अल्लाह ये इम्तिहान की घड़ी है साहिब आपका, आप तो दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हैं, हाँ आप तो इस जिंदगी में इम्तिहान के कर्ज से आए हैं ना। आप इतना सोच लीजिएगा अगर आपके बस्ती में किसी बेटी की शादी हो रही है, आपके मोहल्ले में कोई गरीब बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है, आपको खाने की भी दावत दिया है, तो आप सिर्फ खाने की नीयत से ना जाना, आप उसके घर का पिंडाल देखने ना जाना, आप उसके घर के बिरयानी का जायका लेने ना जाना, आप उसके खाने का टेस्ट लेने ना जाना, हाँ आप अपने घर से खा करके निकलना और जाने के बाद उस बेटी की शादी में शिरकत जरूर करना, लेकिन खाने की नीयत से नहीं करना, आप इस नीयत से जाना ताकि मैं देखूं मोहल्ले की बेटी की रुखसत हो रही है, बेटी की शादी हो रही है। क्योंकि एक बाप की बेटी सिर्फ उस बाप की बेटी नहीं होती है, पूरे कौम की बेटी होती है, अपना हो या गैर हो यार, इस्लाम ये तो बता रहा है। मेरे आका की बारगाह में हातिम ताई की बेटी आ गई है, आज आ गई है बेपर्दे के साथ, हाँ उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, अल्लाह के महबूब ने कहा था ऐसा करो अपने मुसम्मिल वाली चादर उतार करके दिए है, कहा ऐ मेरे दीवाने ऐ मेरे सहाबी ये उस लड़की को दे दो जो अपने सर पे दुपट्टा रख ले। सहाबा इकराम ने कहा था या रसूल अल्लाह वो तो अपनी बेटी नहीं है, उससे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो गैर की बेटी है, हाँ वो मजहबन गैर की बेटी है, वो खुदा को मानने वाली नहीं है, आपको मानने वाली नहीं है, वो अपनी नहीं है, गैर की बेटी है। तब इस्लाम देख क्या बता रहा है, मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे दीवानों अपनी हो या गैर हो बेटी बेटी होती है, अपना हो या गैर हो बेटियों की इज्जत कर लेना। आज हम यहाँ बेटी को इज्जत करेंगे, मैदान हश्र में मुस्तफा उसको इज्जत के साथ शफाअत अता फरमाएंगे। हाँ हम यहाँ इज्जत करें ना तो आज हमारे पास वो रूल सिस्टम नहीं है। शादियों में हम शिरकत भी करते हैं, खाने जाते हैं, दावत पे जाते हैं, खाने के बाद भी गरीब के लुकमों में हम कमी निकाल करके आ जाते हैं। गरीब के शादियों में यार क्या खिलाया अपनी बेटी की शादी में, कुछ नहीं खिलाया, ना नमक का ठीक, ना खाने में टेस्ट, ना इंतजाम अच्छा। मैं कहता हूं यार वो तो अगर आपको एक लुकमा खिला दिया ना, बगैर नमक का भी खिला दिया ना, तो गरीब जानते हैं कहां से इंतजाम करता है। कभी आपने सोचा होगा कि इस दौर में अगर एक बाप बेटी की शादी कर रहा है तो इंतजाम कहां से करता है। ये 50 किलो मुर्गे का इंतजाम जो करता है ना, तो वो भी मोहल्ले से कर्जा लेकर के करता है। कभी आपने सोचा अगर आपके खातिर भगोने का बिरयानी बनवाता है, मोहल्ले की दावत करके आपको खाना बनवा रहा है, तो साहिब वो भी मोहल्ले से कर्जा लेकर के बनवाता है। आप सिर्फ खाने की नियत से किसी की शादी में ना जाना, हाँ सिर्फ तनाउल फरमाने ना जाना, इस नियत से भी चले जाना ताकि मैं देखूं फला की बेटी की शादी हो रही है। क्योंकि एक बाप की बेटी पूरे कौम की बेटी होती है, आपकी भी बेटी होती है, आपके पड़ोसियों की भी बेटी होती है, पूरे मोहल्ले की बेटी होती है। तो सिर्फ उसकी शादियों में उसका पिंडाल देखने ना जाना, बिरयानी का टेस्ट लेने ना जाना, उसके खाने का जायका लेने ना जाना, हाँ ये सोच करके चले जाना चलो मैं देखूं बेटी की शादी हो रही है, कहीं जहेज की कमी तो नहीं रह गई हो, हाँ कहीं उसके शादी में किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई है, कहीं मेहमानों की खानों में तो कमी नहीं रह गई है, हाँ कहीं उसका बाप कोने में बैठ करके रो तो नहीं रहा है। यार जानते हो जिस दिन बेटी को बाप इज्जत से रुखसत करता है ना, बेटी की जिस दिन शादी करता है सारे लोग उसके दरवाजे पे खा रहे होते हैं, एक तरफ उस बच्ची का बाप घूम रहा होता है या कहीं कोने में बैठ करके आंसू बहा रहा होता है, रब की बारगाह में फरियाद करता है अल्लाह इतने लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं खाने के लिए, अल्लाह कहीं मेरे खानों में कमी ना हो जाए, कहीं लुकमों में कमी ना हो जाए। अरे जिस बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ना होगी समझ लीजिएगा कि ये कोई और नहीं है, ये बेटी का बाप है। हाँ जो टेंशन में पड़ा होगा, हाँ जिसके बदन पे अच्छा लिबास नहीं होगा, आप बेटियों की शादी के दिन समझ लीजिएगा कि ये बेटी का बाप है, कहीं घूम रहा होता है, किसी से पूछता है बताइए किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई है, हाँ कहीं से कोई कमी तो नहीं रह गई है। बाप टेंशन में पड़ा रहता है यार, कभी इस नियत से भी उस बेटी के दरवाजे पर चले जाना ये देखने कि कहीं बेटी की शादी में कोई कमी तो नहीं रह गई है, इतना सोच करके उस बेटी के दरवाजे पर जाना और उस बाप के करीब जाना और इतना कहना ए बाप सुन मुझे खाने के लिए दावत दिया था लेकिन ये खाना मुझे खवारा नहीं हो रहा है, ऐसा करो ये चंद रुपया अपने माल में से निकाल करके लाया हो,
ये चंद पैसा ले ले, अगर तेरी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी रह गई हो, ये पैसा ले, इससे इंतजाम कर लेना, ये पैसा ले, इससे अपनी बेटी की शादी में इंतजाम कर लेना। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, उसकी बेटी की रुखसती बाद में होगी, उससे पहले मदीने वाला मुस्तफा आपसे राजी होता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, निकाह को बिल्कुल आसान करो, सस्ता करो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अगर निकाह आप आसान कर लिए ना तो दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अगर शादियों को आपने आसान कर दिया तो, लेकिन हमने मुश्किल कर दिया। अब अगर मुआशरे में बुराई हो रही है ना तो फिर समझ लीजिएगा कि अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं है, हमने शादियों को मुश्किल कर दिया है। मुश्किल कर दिया ना, आज यही रीजन है। आप सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आए दिन आप क्लिप देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, और आप ये खबरें इस दौर में इतना समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी का जमाना है कि आप दिल्ली की खबरों को यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, आप सऊदी की खबर को यहाँ बैठ करके देख रहे हैं। आप भी देखते होंगे साहिब, ये जमाना चूंकि आप क्लिप देखते रहते हैं कि न जाने कहाँ की इतनी कहीं बेटियां जा रही है, अपना तो दूर की बात है, गैरों के साथ भी निकाह करके शादी करके जा रही है, गैरों के साथ भग जा रही है। कोई आप ऐसी भी तारीख पढ़े होंगे ना कि कहीं की बेटियां शादी के बाद भी 2-2 साल तक उसे ताना दिया जाता है कि तेरे बाप ने दिया क्या है, फिर वो जहेज के खातिर कहीं नाले और नदी में कूद करके जान दे रही है। आपने ऐसी भी क्लिप देखी होगी कि कहीं बेटियां इंटरव्यू में खड़े होकर मीडिया वाले पूछ रहे हैं, बता बेटी अपने बाप को छोड़ करके क्यों आई है, क्या तुझे बाप की इज्जत प्यारी नहीं लगी है, क्या माँ की मोहब्बत तुझे नहीं है, क्या भाइयों से प्यार नहीं था, सबको ठुकरा करके, और यहाँ तक के अपना धर्म भी एक्सचेंज करके चली आई है, अपना मजहब भी बदल करके चली आई है। हाँ, अपना मजहब भी चेंज कर दी है। क्या बात है, तो आप नहीं सुनते हैं, आपके काने कहां रहते हैं? हाँ, उस वक्त आप कहां रहते हैं? बेटियां इंटरव्यू में खड़ा होकर के क्या कहती है, मैं बेटियों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, हाँ, मैं उसके हिस्से में बात नहीं कर रहा हूं जो बेटियां भाग करके जा रही है या गैरों के साथ रंगरीलियां मना रही है, मैं उसके सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूं। आपने इसे भी न्यूज देखा होगा ना, एक बेटी मुर्तद हो गई थी, शहर बरेली के रहने वाली थी, आपने चंद 2-4 रोज पहले देखा होगा, शहर बरेली की वो बेटी मुर्तद हो गई थी, इस्लाम छोड़ करके गैरों के साथ चली गई थी। 2 साल रखने के बाद उसे निकाल दिया गया घरों से, या चंद साल रखने के बाद उसे निकाल दिया गया घरों से। जब बरेली के जमीन पे उसका इंतकाल हुआ ना तो उसके लोगों ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी है और बताया दुनिया वाले दुनिया की बेटियों को पैगाम दिया, देख लो ये पहली बेटी है जिसको बरेली के जमीन पर बगैर जनाजे की नमाज पढ़े दफनाया जा रहा है। आप सुनते नहीं है, आप पूरे कौम की बेटियों को पैगाम दिया गया है बरेली के जमीन से कि अगर बेटियां धर्म चेंज करके जा रही है उससे आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो बेटी धर्म परिवर्तन करती है, आज जो गैरों के साथ जाती है, अल्लाह उस पर लानत फरमाता है। बगैर जनाजे की नमाज पढ़े उस बेटी को दफना करके पूरे मुआशरे की बेटियों को पैगाम दिया गया। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है? बेटियां क्यों धर्म बदल रही है, क्यों एक्सचेंज कर रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेटियां इंटरव्यू में खड़े होकर के कहती है, क्या करूं मैं, धर्म न बदलूं तो क्या करूं, मैं एक्सचेंज ना करूं तो क्या करूं, इसलिए कि मेरे धर्म वालों ने शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि मेरे बाप के पास उतनी दौलत नहीं है कि किसी को अपाची दे करके दामाद बना सके, मेरे बाप के पास उतनी जमीन नहीं है कि किसी को 2-4 बीघा लिख करके अपना दामाद बना सके, मेरे बाप के पास उतनी दौलत तो नहीं है कि किसी को कैश दे करके अपना दामाद बना सके। ये बेटियां इंटरव्यू में कहती है, कहां रहते हैं आप? मीडिया पे खाली पिक्चर के चक्कर में रहते हो, या फिर ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में आप रहते हो, हाँ, या फिर सीरियल की अदाओं के चक्कर में आप रहते हो। कभी कभी ऐसे न्यूज़ों को आप सुन लेना, वो बेटियां कहती है मेरे धर्म वालों ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है, इसलिए मैंने गैरों के साथ आज शादी करने पे मजबूर हो गई। यार, आपकी बेटियां है, इज्जत बचाना आपका काम है, हाँ, मजहब इस्लाम को पामाल होने से बचाना आपका कामाल है। हमारे वजह से इस्लाम पे उंगलियां उठाया जा रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, बेटियां हमारे मुर्तद हो रही है। आज हम कहना चाहूंगा, आज बेटियों की इज्जत बचाना हमारा काम है, बेटियां रहमत होती है। आज भी हम निकाहों को आसान कर दे ताकि ये बेटियां मुर्तद ना हो, गैरों के साथ ना जाए। अरे बेटी गरीब भी हो तो रब का शुक्रिया अदा करे और ये कहे, अल्लाह तेरा शुक्र है जिस तरीके से मजहब इस्लाम में अमीरों को निभाया जाता है वैसा ही गरीबों को भी निभाया जाता है। हाँ, ये बेटियां कहे, ये बेटियां अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मजहब इस्लाम में पैदा किया है।
जिस मजहब में जिस तरीके से अमीरों का ख्याल किया जाता है वैसा ही गरीबों का भी ख्याल किया जाता है। यही इस्लाम बताता है। हाँ, ये इस्लाम बताता है। वरना साहिब गरीब है ना तो वो अमीरों की आजमाइशों के लिए है। वो कहाँ जाएगा? दर दर पे ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है। जानते हो हजरत अली फरमाते हैं कि तुम अमीर से डरना या ना डरना मगर गरीब से डरते रहना। हाँ, अमीर से डरना या ना डरना, गरीबों से डरते रहना। कहा अली आखिर क्यों? अमीर के पास तो ताकत है, तलवारें हैं, उसके पास हथियार है, अमीर के पास पैसा है, रिश्वत भी दे सकता है। डरना तो अमीर से चाहिए। हजरत अली ने कहा था कि सुनो, अमीर से डरो या मत डरो, मैं नहीं जानता, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। इसलिए कि अमीर जब बदला लेता है तो अपने ताकत से बदला लेता है, लेकिन जब गरीब बदला लेता है तो अपने रब की बारगाह में हाथ उठा देता है। तो जब गरीब हाथ उठाता है उसके हाथ नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह गरीब का पहले सुन लिया फरमाता है। हाँ, कहा कि ताकत अपने बलबूते के मुताबिक बदला लेता है, लेकिन गरीब जब रब की बारगाह में हाथ उठा देता है ना तो फिर गरीब की आहों को रब ताला